آج جب میں یہاں پر آیا تو جو بھائی میٹنگ کو لیڈ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انسان کبھی کبھی ایسی سچویشن میں چلے جاتا ہے کہ وہ بیماریوں سے گھبراتا ہے، لا علاج بیماریوں سے۔ وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ جب کوئی بھی بیماری ہو، لا علاج ہو، ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے، لیکن ان کا بھی یہ ایمان ہے اور میرا بھی یہ ایمان ہے، لا علاجوں کا علاج کرنے والا ہمارا آسمانی بیٹا یسوع ہے، جو اپنے خون کو جاری کرتا ہے اور زندگیوں میں شادابی، شفا کو نازل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کا موضوع کیا ہے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہاں پر ٹاپک ہے وکٹری تھرو دا بلڈ۔ خون میں کیا ہے؟ فاتح ہے، فتح ہے۔ خون میں کیا ہے؟ بحالی ہے۔ آج ہم جتنا وقت یہاں پر دیکھیں گے، ٹھہریں گے، آج ہم خون کے تعلق سے سیکھنے کو ہیں کہ خون کی جو ویلیو ہے ہماری زندگیوں میں کیا ہے۔ خون جو ہے ہماری زندگیوں میں پاتھ کو لے کر آتا ہے، پاتھ تیار کرتا ہے، اور خون جو ہے ہماری زندگیوں میں ایک نیا ریوائیول لے کر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پرانے عہد نامہ میں آدم اور حوا نے گناہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہم ننگے ہیں، ننگے تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن جب انہوں نے حکم کی نافرمانی کی تو انہوں نے دیکھا کہ کیا ہم ننگے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے لیے کرتے تیار کیے، وہ پہنے۔ پتے جو ہیں، جو ان کی لائف ہے وہ چند گھنٹوں کی ہے، آخر کو وہ مرجھا جاتے ہیں۔ مینز وہ جو پتے تھے وہ زیادہ دیر ان کے ننگے پن کو ڈھانپ نہیں سکتے تھے۔ خدا نے ان کے لیے ایک زبردست کام کیا، خدا نے ان کے لیے چمڑا لیا اور ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ چمڑا کسی جانور کا ہوگا، یہاں پر بھی ہمیں خون نظر آتا ہے۔ خدا نے کسی جانور کو ذبح کیا ہوگا اور اس کے چمڑے کو لیا ہوگا۔ خون جو ہے ذریعہ بن گیا، جانور جو تھا، برہ جو تھا، ذریعہ بن گیا، اور جو چمڑا جو تھا ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے اس کا ذریعہ بن گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کاہن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کیا تھا تو خدا نے پوچھا تیرا بھائی کہاں ہے؟ وہ کہتا میں نہیں جانتا، کیا میں اس کا نگہبان ہوں؟ خدا نے اسے کہا کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ حکم کی نافرمانی کے باعث آدم لعنتی بنا، اور قتل کے بعد زمین کے سبب سے قائن لعنتی بنا، اور لعنت انسانیت میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی۔ میرے عزیز، آپ جانتے ہیں جب بنی اسرائیل قوم قید میں تھی، اور اس کا ذکر ہمیں، اگر آپ کے پاس بائبل ضرور نکالیے گا میرے ساتھ، اس کا ذکر ہمیں ملے گا خروج کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کے 12ویں باب میں۔ خدا نے کہا تھا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہو، یعنی کہ سال کا پہلا مہینہ، یعنی کہ نسان کا مہینہ۔ اگر آج ہم اپنے کیلنڈر کے حساب سے بات کریں تو یہ تقریباً اپریل کا مہینہ بنتا ہے۔ اس کے 14ویں دن یعنی کہ مہینے کی 14 تاریخ کو تم نے ایک برہ لینا ہے،
भेड़ों में से या बकरियों में से और बेऐब बर्रा लेना है। और महीने के 14वें दिन यानी कि उस महीने की, निसान के महीने की या अप्रैल के 14 तारीख को तुमने रात को उनको ज़िबा करना है। अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा खरूज की किताब 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से। कलाम खुदा में लिखा है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं, बल्कि तुमको हलाक करे। मेरे अजीजों, खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि महीने के, निसान के महीने के 14वें दिन यानी कि अप्रैल की 14 तारीख को या निसान की 14 तारीख को तुम रात को उनको ज़िबा करना, और उसके खून में से कुछ खून अपने घर के जो दरवाजे हैं दोनों बाजुओं पर और दरवाजों की चौखटों पर लगाना। और ये जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, खुदा कहता है कि रात को जब मैं मिस्रियों को हलाक करने के लिए गुजरूंगा तो खा उनके हैवान हो, जानवर हो, उनके पलोठे हो, उनके बच्चे हो, यहां तक भी कह दिया कि उनके देवताओं को मैं सजा दूंगा। लेकिन जब मैं वहां से गुजरूंगा, जिन घरों पर, दरवाजों पर, उनकी चौखटों पर, उनके बाजू पर खून होगा, मैं उनको छोड़ता जाऊंगा। यानी कि जिस घर के दरवाजे पर खून लगा होगा खुदा उनको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जिस घरों पर यह खून ना था, उनके पलोठे, उनके जानवर, उनके हवान, हर एक चीज को खुदा ने नेस्त तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया। खून हमें प्रोटेक्शन देता, खून हमें गिरने नहीं देता। मैं जब भी दुआ करता हूं, मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपनी गाड़ी को, घर की चीजों को, घर की छत को, बिल्डिंग की नींव को, अपने बच्चों को, बीवी को यीशु के लहू के ताबे करता हूं। मैं जब भी दुआ करता हूं ये काम मैं हमेशा कभी नहीं भूलता, हमेशा करता हूं कि खून जो है ये हमारी रहनुमाई करता है, प्रोटेक्शन करता है। और खुदा ने कहा जहां पर खून का निशान होगा मैं उसको देखूंगा और छोड़ता जाऊंगा। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में आज यीशु का लहू है जो क्रूस पर बहाया गया, और जो बेऐब बर्रा था, उनके लिए भी हुक्म था कि तुम एक बेऐब बर्रा लेना और उसे कुर्बान करना। मेरे अजीजों, इंसान के डीएनए में गुनाह है, क्योंकि ये इब्तिदा ही से गुनाह ने जन्म लिया। और जिस तरह जनरेशन चलती गई, गुनाह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, बल्कि नस्ल दर नस्ल गुनाह इंसानियत में ट्रांसफर होता गया। इसलिए अगर मैं
पतरस पहला बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है। हमारा निकम्मा चाल चलन कहां से आता है? बाप दादा से। मेरा अब्बा दीवे बालदा सी, मेरा दादा भी दीवे बालदा सी, ता मैं दीवे बालना। वो बाप दादा से जो नस्ल चली आ रही, वो गंदे काम चले आ रहे हैं। आज बहुत सारी रूहें, जिंदगियां उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज बहुत सारे खानदान जिनके दादाजी भी चले गए थे, अब्बा जी भी चले गए, उनकी जो औलाद है वो तौबा करने के लिए तैयार नहीं। किस तरह से? वो नापाक तस्वीरें हमारी जिंदगियों से जुदा होंगी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, जो बाप दादा से चला आता है, इसने तुम्हारी खलासी फानी चीजों से यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं की, बल्कि एक बेऐब बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से की है। हमारी जो मखलसी है, खलासी है, खुदा ने सोने चांदी से नहीं की, हीरे जवरात से नहीं की, बल्कि मसीह के बेऐब खून से की है। मैं चंद दिन पहले पंजाब में था, तो मैं और मेरे छोटे भाई डिस्कस कर रहे थे एक फैमिली के ताल्लुक से, क्योंकि उनका अब्बा जी दीवे बालदे से। अब जो उसकी आगे औलाद है, उसने तौबा नहीं की, ना उसके शौहर ने, ना उसकी मां ने। आगे जितनी बेटियां हैं, सब में एक प्रॉब्लम है, वो एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। गुस्सा उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। जो मैरिड है उनके घर में खुशी नहीं, और जो अनमैरिड है उसके ताल्लुक से जब मुझे पता चला, आई वॉज वरीड कि इसका होगा क्या। अब जब तक हम उसके लहू को अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे, जब तक हम उसके लहू से धुल नहीं जाते, अपने आप को साफ नहीं कर लेते, तब तक बाप दादा की गंदी रफ्शें, उसकी चालाकियां, उसकी मकारियां हमारा पीछा करती रहेंगी। हम जितना भी चर्च में आए, जब तक हमारी जिंदगी में तौबा नहीं, जब तक हम कामल तौर पर खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाते नहीं, उसका खून हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता, तब तक हम बीमारियों में जकड़े रहेंगे। एवरी थर्सडे आएंगे, एवरी संडे आएंगे, लेकिन बीमारियां हमारा मुकाबला करती रहेंगी, पीछा करती रहेगी, क्योंकि लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन कहां से चलाता है? बाप दादा से चला आता है। खून हमारी जिंदगियों में बहाली का काम करता है। खून हमारी जिंदगियों में शिफा का काम करता है। खून हमारी जिंदगियों में हमें हर रोज ताजा करता है। खून हमारी जिंदगियों में नया रिवाइवल लेकर आता है। यीशु मसीह तो बेऐब था, उसकी जिंदगी में तो गुनाह नहीं था, लेकिन तो भी उसने अपनी कीमती जान हमें
बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी में दाखिल होने के लिए, खुदा की बादशाही के लिए उसने अपना कीमती लहू क्रूस पर बहाया, ताकि हम सब यीशु के साथ तख्त पर बैठे और अपनी जिंदगी के वारिस बनकर खुदा के तख्त के सामने जाओ। वैसे अक्सर गवाही सुनाओ ना, लोग किया है कहते हैं कि मैं दुआ की थी इंज होया। किसकी दुआ से हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि डिफरेंट खादम दुआ कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट, सारा इज्जत, सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले, जो मुर्दों में जिंदगी डालने की कुदरत रखता है। यह है उसकी नाम की क्वालिटी, यह है उसके खून की क्वालिटी। ए बी पॉजिटिव विच केड़ा भी ग्रुप होवे, यीशु दा लहू मंगो, उस ब्लड दे विच शामिल हो जाएगा। जिथों जिथों गुजरेगा, हाय हाय, शिफा का काम करेगा। लीवर खत्म हो गया है, डॉक्टर कहते हैं। किडनियां खत्म हो गई ने, डॉक्टर कहते हैं। हार्ट आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टर कहते हैं। लेकिन मेरे मसीह का खून जहां जहां से गुजरेगा वो शिफा को जारी करेगा। बंद आर्टरियां भी खुल जाएंगियां। क्रिएटिनाइन किडनी दी किन्नी क्यों ना वधी होवे, यीशु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो नामुमकिनात का मुमकिन भाई यीशु है, क्योंकि उसके खून में कुव्वत पाई जाती है। उसके खून में क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। आए मेरे अजीजों, एक हवाला मैं आपके हुजूर एक रखूंगा। अबरानियों 9 बाब उसकी 14वां आयत, पालूस रसूल का खत, सॉरी रोमियो, रोमियो 5 बाब और उसकी आयत नंबर मैं आपके लिए 8 पढ़ूंगा। कलाम खुदा में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। यह है उसकी मोहब्बत। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्त बाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। उसका खून हमें रास बास ठहराता है, गैर ईमानदार को ईमानदार बनाता है। बावजूद इसके कि हम दुश्मन थे, इंसानियत और खुदा के दरमियान जो फासला था वो बहुत बड़ा था। इंसान उसको डायरेक्ट अब्बा कहकर नहीं पुकार सकता था, और ना ही ये हुक्म किसी नबी के लिए था। ये हुक्म मेरी बहनों आपके लिए, ये हुक्म मेरे भाइयों आपके लिए। यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहना? आए हमारे बाप, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए। ये गुड न्यूज यीशु ने हमें दी है। ये गुड बात यीशु ने हमें दिया है कि हम उसे अब्बा कह कर हमेशा की बादशाही, उसका मुंह जाना, उसका मर जाना हमारे लिए निजात का सबब ठहरा। मेरे जो जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद कर रखे हैं, उनकी बाबत लिखा है इसके सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। जिन्होंने अपने बर्रे खून से धो रखे हैं, वो तख्त के सामने है और उसके मक़दस रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपने खैमा उनके ऊपर तानेगा, लेकिन इनके बाद कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी और ना ही कभी उनको धूप लगेगी। लोड शेडिंग इत्थे ही है, प्यास इत्थे ही है, भूख इत्थे ही है। जब उसकी बादशाही के वारिस हो जाएंगे, भूख नहीं, प्यास नहीं, धूप नहीं, मुसीबतें नहीं, बीमारियां नहीं। जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से साफ कर रखे हैं, ये मुबारक बात उनके लिए है। और जिन्होंने अभी तक, आज तक, राइट नाउ अपने जामे बर्रे के लहू से साफ नहीं किए, उनकी जगह तख्त के सामने नहीं, वो उसके लायक के नहीं, बल्कि उनका मकाम जिथे रुआं तड़फन गया, दांत पिसेंगे, बल्कि खादम ने कहा वहां बारबेक्यू होगा, इंसानों का बारबेक्यू। ये बाइबल की बात नहीं है, मैं खादम की बात बता रहा हूं। लोग पानी मांगेंगे, प्यास की शिद्दत होगी। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास घड़ी है मेरे अजीजों। हम अपनी जिंदगियां कामल तौर पर, थोड़ी थोड़ी नहीं, कामल तौर पर और मुकम्मल तौर पर उसके स्पुर्द कर दें। और आज अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने हमसाई के लिए, अपने दुश्मन के लिए यीशु का खून मांगना शुरू कर दें। आए अपने कदमों पे खड़े हो, आए अपने कदमों पे खड़े हो, आए अपने कदमों पे खड़े हो।